Good morning, student, and welcome to Sri Eknathrav Khadse Talent School, Muktinagar online tutorial. I am Sachin Patil, your computer teacher, and today we are going to learn chapter 8, Fun with Logic. Fun with Logic in this chapter. Now, in this chapter, what we are going to learn? We are going to learn about the logic, instruction, commands, whatever what the logic we are using and what instruction, how how we can give the instruction to the computer to complete one of the task or to do one of the thing. So let us start this chapter. Dear student, see instructions. If we have to complete one of the task or any action, if you are performing any action on the computer, so we have to give the instruction and commands to the computer. So see one of the example here. Jason is the sport captain of his school and he was thrilled to receive the chief minister's scholarship for his outstanding performance in sports. Hmm? But his scholarship amount has to be credited to his bank account and Jason does not have a saving bank account. Huh? He gets some credited amount and he want to save deposit his amount to his bank, but he does not have his bank account. So what he do? So he approaches a bank. वो बैंक में जाता है in his locality and the bank employee at the help desk give him instruction to complete the task as given below. तो जो बैंक में जो अधिकारी होता है वो उसको फॉर्म फिलअप करने के लिए देता है, अकाउंट ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है. सो व्हिच आर दैट इंस्ट्रक्शन? सी, take the account opening form from the counter, fill the details in the form carefully, put your signature at the designated place on the form, attach a copy of photo identity card, submit the form at the counter with the minimum deposit. So step by step he is following all the instructions and putting all his own information to the that account opening form. Now what happens after that? After understanding the process to open a bank account, Jason gets on to work. When he went to complete the final step, which was to be submitted to the firm, the clerk informed him that his account could not be opened. जब वो उस अधिकारी के पास जाता है, उस एग्जीक्यूटिव के पास जाता है और वो फॉर्म भरा हुआ फॉर्म उसको सबमिट करता है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है. हाँ, तो द जेसन इज आस्किंग टू हिम व्हाट वुड हैव गॉन रॉन्ग. क्या ऐसा गलत हुआ है? व्हाट रीजन कैन यू थिंक ऑफ? हाँ, आप सोच सकते हो कि उसका रीजन क्या होगा, क्या गलत हुआ होगा. यस, देयर इज अ रीजन एंड व्हाट इज दैट रीजन? सी, once again Jason checked the steps to open the bank account. It was then that he realized that he had missed step number 3, which was to be put signature at the designation place on the form. That was why the task of opening the bank account could not be completed. हाँ, जहाँ पर सिग्नेचर करना था वहाँ पर उसने सिग्नेचर नहीं की थी, इसलिए दैट इज़ वाई हिज फॉर्म इज रिजेक्टेड. So thereafter he put his signature and submitted his form again. His account was finally successfully open. सिग्नेचर करने के बाद उसका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया. हैव यू एवर फेस सच अ प्रॉब्लम्स व्हाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क? व्हाट हैपन्स इफ यू डू नॉट फॉलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड विल यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट? हाँ, ऐसा प्रॉब्लम कभी आप लोगों ने को फेस किया है जहाँ पर कुछ सीक्वेंस, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं एंड जब आपने वो करेक्ट सीक्वेंस फॉलो नहीं किए तो आपको क्या रिजल्ट मिला है? So the same way that we have to do in this chapter, what we have to do? See, from this we understand, we have understood the importance of instruction. From this what we must have to understood the importance of instruction and sequence of instruction to complete a particular task. कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है. To accomplish a task, what we have to do again? We have to follow clearly, sequentially, logically all the instruction to achieve our task. So these are the rules that we have to follow. See which are the rules and that steps we have to follow. Which are that steps? See, clearly identify the output that you want. Clearly identify the output that you want.
means you must know that what output will be come if I am doing this action, if I am performing such a kind of action, so what will be done, or what action will be, or what output will be come. So that you know that. Analyze the instruction required to find a solution and to get the desired output. Analyze the instruction required to find the solution and to get the desired output. Desired output. If you want to get the desired output, so what you do, you have to analyze the instruction. कौन सी instructions हमें देनी पड़ेंगी, क्या instructions हम लोगों को follow करनी पड़ेंगी, that you have to find out and their solution, then you will get the your desired output. फाइनलाइज एंड गिव इंस्ट्रक्शन इन द प्रॉपर सिक्वेंस. जो भी इंस्ट्रक्शन आप फाइंड आउट करोगे वो प्रॉपर सिक्वेंस में चाहिए. अगर प्रॉपर सिक्वेंस में इंस्ट्रक्शन दोगे तभी आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज द कंप्यूटर विल नॉट गेट यू अ डिजायर्ड आउटपुट. Verify whether the output produced is as desired by you in a step 1. Means each and every instruction you have to verify this instruction is correct or not. So in this way you can follow all these steps and then you will get the desired output. See, let us see the next step. What? Identify the output means do you clearly know what output has to be produced. कौन सा आउटपुट आपको प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको आउटपुट आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है. दूसरा एनालाइज करना. तीसरा फाइनलाइज इंस्ट्रक्शन फाइनलाइज करना सीक्वेंस में, एंड वेरीफाई द आउटपुट, लास्ट में आउटपुट चेक करना. सो दीज आर द 4 स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो टू कंप्लीट वन ऑफ द टास्क. Now you must have understood the importance of instruction. Now the sequence of instruction you clearly know that. Now to accomplish a task and to get the desired output, you have to give each instruction clearly and also sequentially. Now see, here is the something show in the picture, the twirly cat. This is the cat, it is the picture of cat, and this cat want to go in his house, in her house. So how she could how ये कैसी जा सकती है, how she is going to his house. See, to accomplish a task, what we do, we have to give some instructions and the way she is going. वो किस रास्ते से किस तरह से जाएगी ये हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी. तो ये कैसे हो सकता है, दैट वी हैव टू गिव सम स्टेप्स. मीन्स मूव फॉरवर्ड बाय 10 स्टेप. मतलब हमें उस ट्रॉली कैट को 10 स्टेप आगे चलाना पड़ेगा. देन टर्न राइट बाय 90 डिग्रीज. तो इस तरह से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से टर्न करना पड़ेगा, फिर उसको और 10 स्टेप 20 स्टेप उसको हम लोगों को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर उसको 90 डिग्री में लेफ्ट साइड में टर्न करना पड़ेगा. इन दिस वे ऑल दिस इंस्ट्रक्शन इफ वी आर प्रोवाइडिंग टू द कंप्यूटर, देन वी विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट. मीन्स दैट scratch or that cat, sprite cat, twirly cat will be reached to her home. Now so how we can do this, we can use in one of the software, and that software is nothing but the Scratch application. How we can do this animation or giving the instruction to the twirly cat. Sorry. So that is nothing but the one of the software. That software is called as a Scratch application. Using this Scratch using this application, you can create. Using this application, you can create your own stories, games, and various other animation using a simple drag drop instruction. Drag and drop instruction. Using a Scratch application, what you do, you can create your own stories, games, and various other animation using a simple drag drop instruction. Now Scratch, what is Scratch? Scratch is the free programming language developed by MIT in 2005. तो MIT ये जो एक इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर 2005 में ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई है. ओके. नाउ सी, एनिमेशन इन स्क्रैच कैन बी क्रिएटेड इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड. हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप से इसको क्या कर सकते हैं,
ओपन कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमें कौन सी साइट पे जाना पड़ता है, ये साइट पे। क्या साइट है, देखिए साइट का नाम क्या है, वेबसाइट का नाम यहाँ पर है, दिया है https://scratch.mit.in। हाँ, जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ द वेबसाइट फ्रॉम यू डाउनलोड योर स्क्रैच एप्लीकेशन। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट पे चले जाओगे और आप क्या करोगे, उसको डाउनलोड कर सकते हो। नाउ ऑन ओपनिंग अ स्क्रैच यू विल सी द इंटरफेस इन दिस वे। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, इस तरह का एनवायरनमेंट आपके सामने होगा, जहाँ पर ये वाला एक लेफ्ट साइड पोर्शन होगा, लेफ्ट साइड के नीचे एक स्प्राइट एरिया होगा, ऊपर कैट स्प्राइट होगा, उसका स्टेज होगा। हाँ, यहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट दिए होंगे, स्क्रिप्ट कैटेगरीज। हाँ, मतलब क्या क्या स्क्रिप्ट हमें यूज़ करनी है। एंड दिस इज़ द स्क्रिप्ट एरिया, ये स्क्रिप्ट एरिया, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट और इंस्ट्रक्शन यहाँ से निकाल कर हमें यहाँ पर ड्रैग करनी पड़ेंगी। So I will show you the practical. Let us do the practical. Click on the start button, find out the scratch. I have already installed in my computer. So this is the scratch. See, this is the scratch environment. Here this is the script. This is called where my mouse is clicking. This is called as a cat stage, and this is called as a cat sprite. This is called as a sprite area. This is called as a sprite area. These are called as the instructions. These are the blue colors. These are called as instructions, and this is called as a script area. इसे script area कहते हैं. Now all these are the environment of Scratch. Now what you do in this environment, it is the interface where you can give the instruction and move your Scratch sprite, cat sprite, to the desired location. Now twirly cat will be called as a cat sprite. ये जो twirly cat है, ये twirly cat जो है, ये हम लोग कोई भी इमेज ले सकते हैं, हमारा खुद का इमेज बना सकते हैं इसको, या दूसरा कोई भी इमेज डाल सकते हैं हम लोग, कोई टाइगर या डॉग या किसी आदमी का फ़ोटो, किसी का भी फ़ोटो यहाँ पर डाल सकते हैं। वो फ़ोटो डालने के बाद हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इसको कैसे मूव होना है। सो हाउ वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शन, सी टू मेक द स्प्राइट मूव ऑन अ स्पेसिफिक पाथ, to make the sprite move on a specific path, you have to choose the appropriate instruction block and drag it to the script area. ये जो appropriate instruction and script है, यहाँ पर ये देखिए स्क्रिप्ट है, कॉस्ट्यूम्स है, अलग अलग कॉस्ट्यूम हम लोग इस पर डिज़ाइन अप्लाई करके वो उसको दे सकते हैं। यहाँ पर आवाज़ हम लोग उसको दे सकते हैं। दिस इज़ द स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ से उठाकर ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि ये 10 स्टेप यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टेप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी स्टेप हम लोग यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, उठाकर जो चाहिए इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ से उसको दे सकते हैं। उसको मूव करना, उसको आगे फॉरवर्ड करना, बैकवर्ड करना, उसका कलर चेंज करना। सो इन दिस वे वी कैन मूव द दिस कैट स्प्राइट टू द डिजायर्ड लोकेशन। हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्रैच script. Now see how we can giving the instruction. See, let us see the next point. See, open the Scratch event. Here, what? Open the Scratch event. Click event category script and drag to the script area. This instruction that when you click this flag, the script will start execution. Now click the select pane category of the script and the instruction block of this category will be displayed. Drag to instruction block to the script area as shown below. So in this way, these are the instructions that we have to drag and we have to follow, check whether the cat sprite is moving or not. See, first is what?
what the first? When click. When click. Now first step is what? Clear, pen down, and cat set pen color to clear, pen down. First we get clear. When click, then clear. This is the second instruction. First is when click. Click करने के बाद, when click means when we are clicking, that time that cat will be move on this area. This area, इस area में वो क्या होगी? move होगी. This is second step is what? clear. मतलब जो भी पहला उसने ड्राइंग निकाला हुआ है वो क्या करेगा? क्लियर करेगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? पेन डाउन. पेन डाउन, दिस इज द पेन डाउन. पेन डाउन मीन्स व्हाट? वो ड्राइंग ड्रॉ करेगा. पेन नीचे आएगा और पेन मतलब कैट के पीछे से वो लाइन ड्रॉ होती जाएगी. पेन डाउन. देन नेक्स्ट इज व्हाट? सेट पेन कलर टू ब्लू कलर. सेट पेन कलर टू blue color. See, set pen color to blue color. In this way we are giving the instruction to the cat. Now click the motion category of the script tab. Next step is what? Click the motion category of the script tab, drag the required instruction to the script area. अभी पोजीशन द स्क्रिप्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. पहला क्या देना है अभी उसको? पहला एक्शन क्या देना है? पोजीशन द स्प्राइट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. गो टू -95 to 127. -95. Which one that? -95. Go to X. Click motion. Motion पे click करो. Now we are giving the motion to this cat. Where is motion? Here is motion. When we click on this motion, now here is coming. Now what we have to give the instruction? Go to X -95 to Y 27. X -95. Go to उसका पोजीशन सेट करना है हमें. कहाँ से? -195 to 250. कुछ भी पॉइंट दे सकते हो. मतलब इसको -195 से लेके यहाँ से लेकर 250 तक ऐसे मूव उसको करना है. सो गो टू एक्स पोजीशन. उसका एक्स पोजीशन -195 से स्टार्ट होगा और उसका वाई पोजीशन कहाँ तक जाएगा? वो 250 तक. सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या देनी उसको? ग्लाइड. मूव द स्प्राइट टू द मेंशन कोऑर्डिनेट. उसको मूव करना है. ग्लाइड मतलब वो कितने टाइम में वो मूव होगा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइड. ग्लाइड 3 सेकेंड्स टू XY 127. -121 से 127 तक ग्लाइड मूव करना है उसको. ये देखिए, दिस इज द ग्लाइड इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव टू गिव. ग्लाइड कितने सेकेंड में कंप्लीट करेगा वो? 5 सेकेंड में. हम लोग 5 सेकेंड देते हैं. कहाँ से? वही पोजीशन देंगे हम लोग उसको. यहाँ पर हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेशन देंगे उसको. -195 लेके 250. वही पोजीशन दिया हम लोगों ने उसको. पहले हम लोगों ने उस पोजीशन पे भेजा और बाद में हम लोग उसको वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? मूव करने वाले हैं. देन से अगला स्टेप व्हाट? टर्न 90 डिग्री. हम लोग उसको 90 डिग्री में टर्न कर रहे हैं. देन आफ्टर वी आर डूइंग? वी आर टर्निंग हिज फेस. टर्न कैसे करेंगे? टर्न
90 डिग्री, टर्न 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नीचे की तरफ टर्न होगा, यहाँ पे हम लोग देंगे उसको 90 डिग्री। अगेन व्हाट वी डू, वी अगेन मूव, मूव स्टेप देंगे उसको, कितना 100, यहाँ पर हम लोग 100 स्टेप देंगे उसको। हाँ, फिर अगेन उसको ग्लाइड करेंगे, फिर हम लोग उसको टर्न करेंगे, टर्न राइट साइड 90 डिग्री। अभी चेक करते हैं कि ये कहाँ पर मूव हो सकता है। सी, हाँ, नाउ हाउ वी कैन डू दिस, वी आर क्लिकिंग ऑन दिस click motion, when we click on the flag the cat will be move, see how it will be moved, let us do the practical। अभी यहाँ पर जो ऊपर ये फ्लैग दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक कैट मूव होगी, सी, हैव यू चेक, द कैट इज मूविंग इन दिस वे, इस तरह से ये कैट मूव हो गई है, यहाँ से ये आगे गई और वहाँ से वो मूव हो गई। नाउ आई एम डूइंग द सेम अगेन, वी आर यूजिंग अ क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्लियर, अगेन क्लियर। If we are going here again, see, delete, we are again give the instruction to this position, -172, now see, we again check this, okay, let's check again different way, turn 90 degree, So, dear student, again we see the different example to move the scratch sprite, to make a square, अगर हमें स्क्वायर बनाना है, स्क्रैच स्प्राइट के हेल्प से, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट मूव दिस कैट एनीवेयर बिफोर वी आर, इफ यू वांट टू टेक अनदर स्क्रैच इमेज, अगर आपको दूसरा इमेज लेना है तो यू कैन चूज फ्रॉम दिस पोजीशन न्यू स्प्राइट, यू क्लिक ऑन द न्यू स्प्राइट, यू टेक एनी वन, कोई भी स्क्रैच स्प्राइट यहाँ से आप ले सकते हो, आपको जो पसंद हो। मैंने यहाँ पर ये 90 पॉनी ले लिया, ये मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये पॉनी यहाँ से आ गया और ये मैं स्क्रैच को निकाल देता हूँ, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो,
और इसको आप मूव कर सकते हो। इसको अगर आपको छोटा या बड़ा करना है तो भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर अगर ग्रो पे करोगे तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये बड़ा हो गया। इसको छोटा करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, उसको श्रिंक कर दो। छोटा चाहिए तो छोटा इसको कर सकते हो, और छोटा चाहिए और छोटा हो सकता है। तो इन दिस वे यू कैन मेक चेंज एनी स्प्राइट। कोई भी स्प्राइट चेंज कर सकते हो। अभी हमें कौन सा एग्जांपल सॉल्व करना है, हमें बनाना है एक स्क्वायर। हाँ, मतलब ये जो पोनी है ये पोनी स्क्वायर में घूमना चाहिए। तो हम लोग कौन से इंस्ट्रक्शन इसको देंगे कि ये पूरा स्क्वायर में घूमेगा। तो हमें क्लिक, जब हम लोग एक क्लिक करेंगे तब ये मूव होना चाहिए। तो व्हाट वी डू, वी आर टेकिंग इवेंट्स। व्हेन इवेंट पे क्लिक करेंगे तो व्हेन वी क्लिक। हाँ, फिर उसको हम लोग देंगे कंट्रोल्स। कंट्रोल्स माने क्या, सॉरी, हम लोग उसको देंगे मोशन देंगे। हाँ, मोशन माने हम लोग मूव 10 स्टेप करेंगे उसको। मूव 10 स्टेप करने से पहले हम लोग उसको क्लियर करेंगे। क्लियर मतलब जो भी ड्राइंग पहले आएगी वो हम लोग उसको क्लियर करेंगे। हाँ, उसकी पीछे वाली ड्राइंग क्लियर होती जाएगी। हाँ, फिर वो क्या करेगा, पेन डाउन मतलब उसके पीछे से लाइन खींचेगा। जब वो आगे चलेगा तो उसके पीछे से वो लाइन खींचते जाएगा, तब जाके वो स्क्वायर ड्रॉ होगा। हाँ, मतलब पहले जो जो भी ड्राइंग निकाली होगी वो क्लियर होगी। ये पेन डाउन से क्या होगा, पेन डाउन से वो पीछे से लाइन ड्रॉ करते आएगा। फिर हम लोग उसको मूव करेंगे। मूव मूव कितने स्टेप करेंगे, 10। हम लोग 100 स्टेप उसको आगे भेजेंगे। मूव 100 स्टेप। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 100 स्टेप देने के बाद उसको टर्न करेंगे 90 डिग्री। हमें स्क्वायर निकालना है ना, तो 100 स्टेप चलने के बाद वो मुंह टर्न होना चाहिए। तो टर्न होने के लिए हमारे पास मोशन में कौन सा ऑप्शन है, टर्न 90 डिग्री। टर्न 90 डिग्री हम लोग इसको लेते हैं, टर्न 90 डिग्री। हाँ, ये यहाँ से टर्न 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हम लोगों ने 90 डिग्री में उसको टर्न किया। हाँ, हाँ, लेकिन ये कितनी बार होना चाहिए, अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो ये कितनी बार होना चाहिए, हाँ 100 टाइम्स। हाँ, कितने टाइम्स होना चाहिए, 100, सॉरी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स वो आगे जाएगा, फिर टर्न मारेगा, फिर आगे जाएगा, फिर टर्न मारेगा, फिर आगे जाएगा, फिर टर्न मारेगा। इस तरह से जब वो 4 टाइम्स आगे जाकर टर्न मारेगा तब जाके एक स्क्वायर बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स। कंट्रोल मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। 4 टाइम्स रिपीट करने का। तो हम लोग ये रिपीट का इंस्ट्रक्शन लेंगे यहाँ पर। ये हम लोगों ने रिपीट का इंस्ट्रक्शन लिया। कितनी बार रिपीट करेंगे हम लोग, ये जो दोनों स्टेप है फॉरवर्ड जाने का और टर्न करने का, ये जो स्टेप है ये कितनी बार रिपीट करेंगे हम लोग, 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो ये 4 टाइम्स हम लोगों ने रिपीट की है। लेकिन ये रिपीट और टर्न कैसे कैसे होगा ये, हाँ, ये एक एक सेकेंड के बाद होगा। कितने सेकेंड के बाद होगा, एक एक सेकेंड के बाद। हम लोग तो फिर हम लोग क्या लेंगे, हाँ, हम लोग इसको मोशन, मोशन में सेकेंड, सेकेंड कहाँ पर है, यहाँ पर सेकेंड 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 इवेंट्स। हाँ, यहाँ पर सेकेंड, कंट्रोल्स में सेकेंड है। हाँ, यहाँ पर देखिए हम लोग एक सेकेंड के बाद और एक सेकेंड के बाद टर्न भी होगा। हाँ, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, हाँ, मूव 100 स्टेप मूव करेंगे और 90 डिग्री में उसको टर्न करेंगे एक एक सेकेंड के बाद। और ये स्टेप कितनी बार रिपीट होगी, 4 टाइम्स रिपीट होगी। हाँ, 4 टाइम्स रिपीट होने के बाद वो पेन डाउन, पेन डाउन मतलब क्या करेगा, वो पीछे से लाइन ड्रॉ करते जाएगा। हाँ, हाँ, ये कब होगा, जब व्हेन वी क्लिक द फ्लैग, जब हम लोग फ्लैग को क्लिक करेंगे या स्क्रिप्ट को रन करेंगे। हाँ, अभी हम लोग स्क्रिप्ट को रन करते हैं, ये फ्लैग पे हम लोग क्लिक करते हैं। हम लोगों ने क्लिक किया तो अभी हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, ये आउटपुट कैसे निकालता है देखिए। हाँ, यहाँ पर मैंने अभी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए, हाँ, देखा। सो इन दिस वे आवर स्क्रैच इज मेकिंग द स्क्वायर। हाँ, ये स्क्वायर इसने बनाया। हम लोग इसको फिर से करके देखते हैं। ये थोड़ा टर्न हो चुका है।
टर्न क्यों हुआ? ओके, वन. सो इन दिस वे वी कैन डू दिस. ओके, नाउ अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग ट्रायंगल का. अगर हमें ट्रायंगल निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? हाँ, ये इंस्ट्रक्शन अभी हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ से क्लियर कर देते हैं. दूसरा दूसरा इमेज लेते हैं और फिर से हम लोग ट्रायंगल निकाल कर देखते हैं. हाँ, अभी देखिए हम लोग नया ये लेते हैं. हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया. ओके. हाँ, और ये वाला हम लोगों ने निकाल दिया. इसको हम लोग निकाल देते हैं. वी कैन डिलीट दिस. इसको हम लोग अभी श्रिंक कर देते हैं थोड़ा. इसको हम लोगों ने श्रिंक कर दिया. अभी हमें क्या निकालना है? ट्रायंगल निकालना है. ट्रायंगल. तो ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे? इवेंट्स लेंगे. व्हेन वी क्लिक. हाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे? पेन. हाँ, क्लियर करेंगे. जो भी ड्राइंग पहली वाली ड्राइंग होगी वो क्लियर होगी. फिर पेन डाउन होगा, मतलब उसके पीछे से लाइन खींचते जाएगा. हाँ. हाँ, फिर वो क्या करेगा? इवेंट्स देगा, सॉरी कंट्रोल्स देगा. रिपीट. रिपीट करेगा. कितनी टाइम्स रिपीट करेगा? अगर हमें ट्रायंगल निकालना है तो 3 टाइम्स रिपीट करेगा. हाँ, और अभी हम लोग इसमें क्या डालेंगे? हाँ, मोशन डालेंगे. हाँ, हम लोग उसको कितनी बार कितने स्टेप चलाएंगे उसको? 100 स्टेप चलाएंगे. हाँ, फिर टर्न करेंगे. टर्न कितनी डिग्री में करेंगे हम लोग उसको? टर्न हम लोग 60 डिग्री में करेंगे. 60 डिग्री में अगर हम लोगों ने टर्न किया तब जाके 60 180 डिग्री का एंगल बनेगा. ओके, सी. हाँ, 60 डिग्री में ये टर्न किया. अभी ये हम लोग क्या डालेंगे इसमें? सेकंड डालेंगे. एक कितने सेकंड में मूव होना चाहिए? एक सेकंड में. 1 सेकंड में ये मूव होना चाहिए और 1 सेकंड में ये टर्न होना चाहिए. सो इन दिस वे वी कैन मेक द ट्राइंगल. अभी हम लोग ट्राइंगल बना के देखते हैं. हाँ, नाउ आई एम द रनिंग क्लिकिंग ऑन दिस फ्लैग मीन्स वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस स्क्रिप्ट. ये इंस्ट्रक्शन हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे. हाँ, तो ये ट्राइंगल ड्रॉ करता है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं. ये भी देखिए. ओहो, इसने ट्राइंगल नहीं ड्रॉ किया. ये 60 डिग्री में टर्न तो हुआ लेकिन ये ट्राइंगल नहीं हुआ. हमें इसको फर्स्ट स्टेप देना था सीधा 120 में, 135 डिग्री में. ओके, हम लोग फिर से इसको क्लियर करते हैं. चलो, हम लोग और इसको क्या करते हैं? थोड़ा आगे ढकेलते हैं. सेंड स्टेप 6 स्टेप कर देते हैं और 3 स्टेप कर देते हैं. 3 स्टेप करने से क्या होगा? ये क्लियर. ये 6 स्टेप कर देते हैं. 6 स्टेप यहाँ पर अगर हम लोग ने 6 स्टेप किया तो ये क्या परफॉर्म करता है देखते हैं हम लोग. हम्म? ओहो, इसने 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल बना दिया. इसने क्या बनाया? हेक्सागोनल बना दिया. एक्चुअली हमें ट्रायंगल बनाना था लेकिन 6 स्टेप्स देने से ये क्या बन गया? हेक्सागोनल. ओके, चलो अभी हमें ट्रायंगल बनाना है. तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने डिग्री में उसको टर्न करना पड़ेगा? हमें उसको टर्न करना पड़ेगा 120 डिग्री में. 120 डिग्री में टर्न करना पड़ेगा इसको. यानी 180 डिग्री में 100
हम लोग इसको टर्न करते हैं। अभी एक काम करते हैं, इसको टर्न करते हैं हम लोग 120 डिग्री में। हाँ, अभी हम लोग चेक करके देखते हैं हाँ ये कैसे क्या बनाता है 120 डिग्री में। हाँ, बना तो लिया, लेकिन इसको 3 बार ही करना पड़ेगा हमें। हाँ, ओनली 3 टाइम्स। यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ 3 टाइम्स उसको रिपीट करेंगे और फिर चेक करते हैं। ये देखिए, आया समझ में? मतलब हम लोग उसको 3 बार ही रिपीट करेंगे, लेकिन कितनी डिग्री में उसको टर्न करेंगे? 120 डिग्री में उसको टर्न करेंगे। तो तब जाके क्या बन सकता है? वो ट्रायंगल बन सकता है। अगर हमें हेक्सागोनल बनाना है तो हमें 6 टाइम्स उसको रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कितनी डिग्री में? 60 डिग्री में 6 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। हाँ कितनी डिग्री में? 60 डिग्री में, तब जाके वो ये होगा। हाँ, so in this way we can make the drawing with the scratch and giving the proper instruction and we get the desired output. हाँ, ये सबको समझ में आया? Okay. हाँ, today we stop here. The next topic we will continue on the next day. Thank you, students.